Hello and welcome everyone to ECG series part 2. We have already learned about the basic physiology of the heart and what leads to what, the starting of the P wave, how the normal cardiac cycle functions in the physiology section already. So, today we are going to learn about the standardization of the EKG strip, like how much should be the basic value of the square strips. As you can see, the EKG strips has so many squares, these some small, some large. We're going to see what does each square signify. As you can get a rough idea, like P wave should basically range from 0.08 second and should basically cover 0.15 millivolt, and then QRS complex should cover 0.09 second and have 1.2 millivolts, etc., etc. So moving ahead, these are the basic value which are best to be learned while proceeding ahead in the further chapters. So on the horizontal axis, we have time, this duration, and one small square covers 0.04 seconds. One large square measures 5 into 5 mm. This part, this has ideally has five small square beneath under it and have 0.20 seconds, should cover 0.20 seconds. Just a multiple of 5, 0.04 into 5 gives 0.002 seconds. On the vertical axis, we have the amplitude measured in voltage, millivolts, and one small square covers 0.1 millivolt, and 0.1 multiplied by 5 gives us 0.5 millivolt. Similar, same funda है इसका, एक छोटा into multiplied by 5. Okay, so we have three characteristics: duration, amplitude, and configuration. Configuration we'll learn about later. What does the configuration mean? It is basically the orientation of each lead with respect to the other lead. And then the cellular engine, the basic principle underlying every muscle contraction is the actin myosin complex. And when a wave of depolarization reaches the myocardial cell, the calcium channel influx is gained, and the calcium allows actin and myosin contractile proteins to interact, and the cell contracts. As we have already learned, the inner मतलब cell cardiac cell के inside में negative charges रहते हैं एंड आउटसाइड पॉजिटिव रहते हैं। डिपोलराइजेशन जब जैसे रिजल्ट होती है तो वहाँ पे चेंज पोलैरिटी चेंज होती है, एज अ रिजल्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्शन। Then the basic physics of this depolarization, अब यहाँ से मेन बात स्टार्ट हो जाती है कि अब कैसा, कहाँ पे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगी, कहाँ पे नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगी। एंड दिस लाइज द मतलब कि टी वेव इन्वर्जन, बहुत सारी पॉइजनिंग हाइपोकैलेमिया वगैरह में वो रिलेटेड रहती है। तो यहाँ पे अंडरलाइंग पैथोलॉजी, अगर बेसिकली अगर किसी का इलेक्ट्रोड ही पेशेंट का गलत लगा दिया है वहाँ पे, तो फिर लगेगा कि वहाँ पे एक पॉइजनिंग का केस बन रहा है या कुछ सेल मेटाबॉलिक चेंजेस वगैरह की वजह से हो रहा है। पर लेकिन इस मतलब उसमें ये भी हो सकता है कि उसने वही गलत रखा रखा है, इलेक्ट्रोड ही गलत लगा रखा है। तो प्लेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइल टॉकिंग अबाउट द ईसीजी। सो द कोर रूल मतलब कि बेसिक ब्रेड एंड बटर जो इसका वो होता है, मतलब फंडा जो होता है कि जो भी जहाँ पे भी इलेक्ट्रोड लगा है वहां पे अगर सिग्नल उसको आता हुआ दिख रहा है, मतलब इफ द सिग्नल इज इनकमिंग देन इट इज परसीव्ड एज पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑन द ईकेजी स्ट्रिप। पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इज अबव, अबव यानी एक पीक आएगी अपर साइड में, दैट इज पॉजिटिव। एंड अगर उसको सिग्नल दिखता है जाता हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और इससे जाता हुआ दिख रहा है वो सिग्नल, तो फिर उसको क्या लगेगा, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारी सीट है, हमें जाता हुआ दिख रहा है, तो वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट इज फॉर द केस ऑफ डिपोलराइजेशन। एवरीथिंग इज रिवर्स फॉर द रिपोलराइजेशन। एंड द बेसिक प्रिंसिपल, बिकॉज अंदर जो पोलैरिटी है वो बदल रही है, डिपोलराइजेशन में अलग है, रिपोलराइजेशन में अलग है, तो सेम चीज रिवर्स हो जाती है। रिपोलराइजेशन हम आगे देखेंगे फ्लो चार्ट में, सारी की सारी चीज कंपैरिजन में, पर लेकिन डिपोलराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। तो इसमें ये देखेंगे
देखेंगे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारी सीट है, ये इलेक्ट्रोड है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर सिग्नल हमारी तरफ आ रहा है तो इट डिनोट्स पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अगर सिग्नल हम हमारी सीट से जा रहा है, हम जाता हुआ सिग्नल देख रहे हैं, तो वहां पे हमें नेगेटिव दिखेगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड होगी। ठीक है। The shape of the wave is dictated by the direction of electricity related to the positive electrode. Depolarization toward the electrode, positive deflection. Okay. And depolarization away from the electrode, जाता हुआ सिग्नल दिखा, तो फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड हो गई। ठीक है। एंड व्हाट डज परपेंडिकुलर एंड बाइफेजिक वेव्स डिनोट? अब हमारी ये सीट है, हमने दोनों चीज देख ली, यानी कि हमने पहले सिग्नल को आते हुए देखा अपने पास, तो फिर हमने देखा वहां पे कि पॉजिटिव आएगी। फिर हमने देखा जाता हुआ भी सिग्नल कि हमारे पास आया और यहाँ सामने से चला गया, तो फिर दैट डिनोट्स बाइफेजिक वेव, क्योंकि द आना पार्ट मतलब आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। एंड बाइफेजिक में हमारी सीट यहाँ पे है, हमने आता हुआ भी देखा, जाता हुआ भी देखा, ये सिग्नल था, यहाँ पे मेरी सीट है, आते हुए भी देखा, जाता हुआ भी देखा, तो बाइफेजिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ओके। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव कंपोनेंट और ये इसका नेगेटिव कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रोड की पोजीशनिंग है। ये सेम चीज नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे वेव अप्रोच कर रही है, फिर डायरेक्टली वहां पे आई हमारे, मतलब कि पहले आई, फिर हमारे एकदम मतलब अंडरनीथ हो गई, जहाँ पे हम बैठे थे वहीं सीट पे आ गई, फिर उसके बाद हमने जाता हुआ देख लिया, एक बाइफेजिक वेव आएगी उसमें। टिपिकल ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक बाइफेजिक वेव होती है। अब फिर हम ये रूल्स ऑफ रिपोलराइजेशन, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, कि पोलैरिटी कैसे रहती है, कार्डियक सेल के अंदर नेगेटिव रहती है और बाहर पॉजिटिव रहती है। तो डीपोलराइजेशन में जब कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि हो रही होगी कार्डियक मसल्स की, तो ये पॉजिटिव कैल्शियम इनफ्लक्स होता है, पॉजिटिव अंदर आता है, नेगेटिव बाहर जाता है। ठीक है, तो ये डीपोलराइजेशन का सीन हो गया। रिपोलराइजेशन में एकदम ऑपोजिट है, तो पोलैरिटी ऑपोजिट हो रही है, तो फिर सारी की सारी चीजें उल्टी हो जाएगी। डिपोलराइजेशन में मूविंग टुवर्ड, यानी हमारे पास आता हुआ सिग्नल है, मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हम इलेक्ट्रोड पे ही बैठे हुए हैं, तो फिर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आई। मूविंग अवे, हमसे जा रहे हैं तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आई। रिपोलराइजेशन में मूविंग टुवर्ड में हो जाएगा नेगेटिव, इसका बिल्कुल उल्टा, वाइस वर्सा। एंड रिपोलराइजेशन में मूविंग अवे वुड गिव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अब रिपोलराइजेशन के लिए हम देखेंगे कि टी वेव का फिनोमेनन, टी वेव में क्या रहता है। नेक्स्ट। ओके सो अब दिस इज द वेरी गुड डायग्राम। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये रहा हमारा पॉइंट, इलेक्ट्रोड ए। अब वेव इसकी तरफ जा रही है, इसमें इसकी तरफ जा रही है, इससे मतलब ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसने जाता हुआ सिग्नल देखा है यहाँ से, तो जाता हुआ देखा, जाता हुआ मीन्स नेगेटिव डिफ्लेक्शन, समथिंग इज गोइंग फ्रॉम मी, मैं जाता हुआ देख रहा हूँ इसमें। इलेक्ट्रोड बी अब इसकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बी है, आता हुआ है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रोड सी, सी ने पहले उसकी तरफ देखा कि यहाँ पे वो बैठा हुआ है, इसका सीट यहाँ पे है, एकदम इंफीरियर लीड हो जाएगी हमारी, वो हम देखेंगे ये कौन सी लीड को क्या बोलते हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब इतना समझ लो कि यहाँ पे जो जो एक्सिस यहाँ से देख रहा है हार्ट को, हार्ट का सिग्नल यहाँ पे देख रहा है कि मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से सिग्नल चला, सेप्टम में आया, सेप्टम से फिर राइट वेंट्रिकल की तरफ आया है पूरा का पूरा, तो उसने आते हुए भी देखा, जाते हुए भी देखा, तो इसमें बाइफेजिक आई, पहले पॉजिटिव उसको लगा इसकी तरफ आ रहा है, फिर जाते हुए देखा, तो वो हो गया इसमें। अब कार्डियक साइकिल हम देखेंगे तो फर्स्ट इज द पी वेव। पी वेव के दो कंपोनेंट रहते हैं हमारे राइट में और लेफ्ट में, इसमें डिनोट करते हैं। फिर इसके आगे आगे हम वो देखेंगे। फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन इज द आर क्यू वेव। फर्स्ट आर क्यू वेव क्यों कहेंगे इसको, क्यू आर एस क्यों कहेंगे? फर्स्ट इज देन एनी नेगेटिव डिफ्लेक्शन फॉलोड बाय पॉजिटिव सब्सिक्वेंट, मतलब एडजेसेंट उसके साथ होने, नेगेटिव के बाद अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसको आर बोलेंगे। फिर आर आर प्राइम क्या होता है, आर आर डैश क्या होते हैं, वो भी आगे देखेंगे। फिर सेकंड जो एक पॉजिटिव के बाद जो नेगेटिव आ रहा है उसको हम एस वेव कहते हैं, मतलब एक एक टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये रेस्ट फेज है हमारा, टी वेव है, इसको जिसमें एट्रियल डिपोलराइजेशन इज द स्पार्क, एंड देन पी आर सेगमेंट, ये हो जाएगा। सेगमेंट क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, कि आगे हम देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओरिजिन ऑफ ओरिजिनल डिपोलराइजेशन। अब एस ए नोड का पोजीशन क्या रहता है, ये बेसिक है कि एस ए नोड कहाँ पे रहता है, हमारी पोजीशन राइट एट्रियम में रहता है। राइट एट्रियम से सिग्नल मतलब कि चालू होता है,
तो अब साइनस नोड जो फायर करती है, मतलब कि जो साइनस नोड होता है वो ईसीजी पे नहीं आता है, लेकिन हमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन ईसीजी पे आती है। तो फिर हम देखते हैं डिपोलराइजेशन पूरे एट्रियल माइक्रोडियम पे, राइट एट्रियम में पूरी स्प्रेड हो जाती है एक स्पार्क की तरह से। एक पेबल छोड़ देते हैं इसमें, रिपलिंग वगैरह जो इफेक्ट होता है। ऐसे नोट क्योंकि राइट एट्रियम में है, तो राइट एट्रियम डिपोलराइज पहले होता है, यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर लेफ्ट एट्रियम होता है। इसलिए जो पहला कंपोनेंट होता है पी वेव का, वो राइट यहाँ पे देखेंगे और ये लेफ्ट देखेंगे। कभी कभी हमारे पास ऐसे सिनेरियोज आते हैं क्लिनिकल्स में कि ईकेजी के अंदर कि ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा वो है, अगर राइट एट्रियम में हाइपरट्रोफी है तो ये ज्यादा कवर करेगा क्योंकि मसल मास ज्यादा हो जाएगा। और फिर उसके बाद कभी कभी हम देखेंगे लेफ्ट एट्रियम में हाइपरट्रोफी हो गई तो लेफ्ट ज्यादा होगा कंपैरिजन में राइट के। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियल कंपोनेंट है, ये राइट एट्रियल कंपोनेंट है। जनरली इसका एम्पलीट्यूड कितना रहता है, 0.25 मिली वोल्ट, और ड्यूरेशन 0.6 मिली सेकेंड्स की रहेगी। और फिर वेक्टर इंफीरियर वेक्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो जस्ट इसको याद रखने के लिए रखो, इंफीरियर इलेक्ट्रोड कौन सा होता है और क्या होता है, अभी याद करने की जरूरत नहीं है इसको। इनफैक्ट ये वेक्टर का काफी इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा बाद में जब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टोटल ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 0.08 सेकेंड। 0.08 सेकेंड का मतलब कितना हो गया कि एक छोटा स्क्वायर कितना 0.04 सेकेंड कर रहा था कवर, एक स्मॉल स्क्वायर। तो ये कितना करेगा, ऑल ऑलमोस्ट 0.04 इंटू 2, 0.08 सेकेंड्स के लिए, यानी कि इसने दो स्मॉल स्क्वायर कवर करा, टू स्मॉल स्क्वायर्स। इन इस डायग्राम के इस पे मत जाओ कि इसमें कितना है, ये एक्चुअली रेफरेंस के लिए। ओके, सो नाउ एवी नोड, अब ऐसे नोड से सिग्नल निकला, एवी नोड में गया, एवी नोड पे गया, तो फिर एक उसके लिए थोड़ा सा हमारा वो आ जाता है, पॉज आता है। इस पॉज को, ये पॉज भी जरूरी होता है, अगर ये पॉज नहीं आएगा तो हम देखेंगे एयरटेल फिब्रिलेशन वगैरह में कैसे मिसमैच हो जाएगा दोनों के उसमें। एक कंडक्शन पॉज है एवी नोड, अब ये देखेंगे इसमें ये जो सेगमेंट ये आती है, क्यों आती है। अब जो वायरिंग, मतलब हमारा जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वायरिंग में देखा था, तो फिर कैसे सिग्नल है, बंडल ऑफ एज, देन बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट, और जो लेफ्ट है, लेफ्ट डिवाइड हो जाती थी तीन में साइकिल्स में, सेप्टल, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये था, ये बस एनाटॉमी के लिए याद करना जरूरी है। फिर जो लेफ्ट होता है उससे टर्मिनल पर फाइबर निकल जाते हैं, टाइनी ट्विंग डिलीवरिंग फिर फर्स्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिपोलाइजेशन, हाँ। अब एट्रिया की बात पी वेव पे खत्म हो गई, पी वेव कॉन्ट्रैक्ट करा, फिर उसके बाद ऐसे नोड ने फायर करा, पी वेव बनी, राइट की पहले बनी फिर लेफ्ट की बनी। उसके बाद एक पी आर सेगमेंट आ गई हमारी जिसमें कोई वेव नहीं आई। फिर उसके बाद हमारा सेप्टल डिपोलाइजेशन आएगा, ये दिस इज द सेप्टल पार्ट, ये हमारा सेप्टल। अब सेप्टल डिपोलाइजेशन में हम देखेंगे, राइट से लेफ्ट में गया था पी वेव का, पी वेव में पहले राइट एट्रियम किया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यहाँ से जो सिग्नल आया वो ऐसे जाएगा, अब लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी पी वेव इज राइट टू लेफ्ट। एंड अपनी जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की वो होती है, स्टार्टिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, क्यों, क्योंकि मसल मास ज्यादा है यहाँ पे, ये रहा। मसल मास ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्टिंग पावर यहाँ पे ज्यादा होती है। तो अर्लीस्ट पार्ट की डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन का इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम, यानी सबसे पहले सेप्टल पार्ट इसमें वो करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जो ये होता है इसको स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि क्या कहते हैं, इसमें मसल मास का ये रीजन होता है, और स्मॉल डिस्क्रीट नेगेटिव डिफ्लेक्शन है इसमें, ये दिस क्यू वे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इसको इग्नोर भी कर दिया जाता है जब हैंड ड्रॉन डायग्राम्स होते हैं, कुछ होता है, पर लेकिन इसका भी हम रीजन देखेंगे, ये वाई क्यू वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, सेपरेट डिपोलाइजेशन हो गई क्यू वेव की। अब आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा हमारा, तो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल डिपोलाइजेज ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, क्योंकि विद इन फ्रैक्शन पूरे क्या क्या कहते हैं कार्डिक साइकिल का टाइम कितना है, उस इतनी बहुत कम 0.08 सेकेंड वगैरह में पूरा वो हो जा रहा है, पूरा पूरा गाड़ी साइकिल खत्म हो जा रहा है। पर इसमें हम देखते हैं तो राइट एंड लेफ्ट ventricles deploys almost simultaneously because the ventricles have vastly more muscle mass than the atria. The amplitude और QRS complex is much greater than the P waves. Dominant force होता है इसमें मसल की, लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल मास ज्यादा होता है, और 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रहता है राइट के, ये लेफ्ट वेंट्रिकल मास। डिपोलाइजेशन डिपोलाइजेशन डिफरेंट, डिपोलाइजेशन डिफरेंट, ये रहा हमारा इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। पर इसमें काफी डिनोट करना मुश्किल है कि लेफ्ट और राइट कंपोनेंट कौन सा है, क्योंकि लेफ्ट ही है जो ड्राइव कर रहा है पूरा का पूरा फोर्स जो है, राइट एज अ रिजल्ट हो रहा है। फिर रीसेट, अब टी वेव देखते हैं, टी वेव में क्या होगा,
एक ब्रीफ रिफ्रैक्टरी पीरियड आएगा और रिस्टोर करेंगे इलेक्ट्रिकल नेगेटिविटी, जो अपना नेगेटिव चार्ज है तो इनका नॉर्मल था वो रिस्टोर करेंगे, पॉजिटिव आया था तो डिपोलराइजेशन, अब वापस होगा तो रिपोलराइजेशन होगा। Vertical repolarization is a much slower process than the depolarization. So that is why the T wave is broader and more rounded. अब इसमें T wave का एरिया देखो, QRS कॉम्प्लेक्स में कितना ऑलमोस्ट 0.12 सेकेंड इसका ड्यूरेशन आता है, यानी कि एक स्मॉल स्क्वायर, हमेशा याद रखना, एक स्मॉल स्क्वायर कितना ड्यूरेशन ले रहा था, स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकेंड्स ले रहा था, है ना। और इसने कितने ले लिए, 0.12 सेकेंड लिए क्यूआरएस में। ऐसा रूल ये याद करना, एक छोटा सा चार्ट अगले लेक्चर में हम वो करेंगे, क्योंकि हम वेक्टर्स अच्छे से देखेंगे तो फिर उनको कंपल्सरी हो जाएगा याद रखना। तो 0.12 डिवाइडेड बाय 0.04 गिव्स 3, यानी कि 3 स्मॉल स्क्वायर कवर करने होंगे किसको, किसको, QRS कॉम्प्लेक्स जनरली कवर्स 3 स्मॉल स्क्वायर्स। ओके। और फिर इसमें कितना इसका टाइम दिखा रहे हैं यहाँ पे, 162 200 मिली सेकेंड्स, यानी ऑलमोस्ट 0.20 सेकेंड्स या 0.16 सेकेंड, यानी कि ऑलमोस्ट 4 का मल्टीपल है, 4 का 5 और ये 4, यानी 4 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स। मतलब कंपेयर कर लो, यहाँ पे 3 है क्यूआरएस के और इसके 5 तक जा रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ी सी कम, इतनी वैल्यू, मतलब इतने ज्यादा इसका रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा है उसको। तो फिर मोर राउंडेड रहेगा इसलिए, और कंपेयर टू द शार्प चार्ट मतलब इतना वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन में इतना मसल मास यूज नहीं करते हैं, पैसिव वो रहता है। अब नॉमेनक्लेचर देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब ये देखते हैं, अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में स्टार्ट हुआ है, अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ है इसमें, स्टार्ट हुआ है डिफ्लेक्शन से, अब डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है यानी कि पॉजिटिव है, तो फिर यस, इफ इट इज यस ओनली वन सिंगल डिफ्लेक्शन, एक ही डिफ्लेक्शन है, तो इट कुड बी क्यूएस वेव, मतलब ओनली वन सिंगल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, यानी कि पॉजिटिव नहीं आई है, सीधे एक नेगेटिव आ गई है, तो फिर क्यू और फिर क्या था, एस क्या हो जाएगी, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव वाली, ये रही क्यू एस वेव हो गई। फिर इसमें क्या है, अब जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है वो क्या कहते हैं, डाउनवर्ड आई है, ठीक है, क्यू वेव हो सकती है वो। फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद जो सेकंड डिफ्लेक्शन है वो नहीं है, वो पॉजिटिव है, तो फिर वो आई नहीं है, यहाँ पे नो है, यहाँ पे कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन आई नहीं है, डाउनवर्ड आई नहीं डिफ्लेक्शन, तो वो क्यू वेव नहीं होगी, वो सीधे आर वेव बताई जाएगी यहाँ पे, अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऐसे बनी नहीं यहाँ पे, एक ही बार में फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो थी इस केस में बनी नहीं, तो सीधे सीधे आर वेव बनेगी हमारी। अभी इसमें थोड़ी देर में वो हो जाएगा ये, फिर क्यू वेव फॉलोज एन आर वेव, यस। सो क्या कहते हैं, एस वेव, उस मतलब एस वेव होगी, वो क्यू वेव होगी नहीं, क्या कहते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन नेगेटिव दिख आ रही है, नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नहीं, फिर एक नेगेटिव के से पॉजिटिव हो रही है, तो ये एस वेव होगी, सिर्फ आर एस, मतलब ये आर एस वेव होगी। फिर सेकंड अपवर्ड डिफ्लेक्शन ही आ गई, फिर आर आर प्राइम होगी, जिसमें ऐसे रहेगा थोड़ा, आर आर प्राइम का, आर और आर प्राइम बनी ईयर्स कहते हैं, और ये भी किन किन कंडीशंस में आती है, ये होता है कि एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नहीं, फिर पूरा नीचे डाउन स्लोप नहीं गया, आर आर प्राइम, ये रहता है इसका थोड़ा डायग्राम, ये नहीं कहता, यहाँ पे आर आर प्राइम रहेगा इसमें। आर आर प्राइम, आर आर प्राइम, दिस इज द एक्चुअल कंडीशन फॉर आर प्राइम, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन ईयर्स। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, आरबीबी में हम देखेंगे, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स में दिस कंडीशन इज सेम, ठीक है। आर एस आर प्राइम के बारे में अब ये सारे ऊपर से फ्लो चार्ट देखे, आगे कंडीशन होगी। ठीक है। देन सेगमेंट वर्सेस इंटरवल्स, व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज इंटरवल। अब सेगमेंट का रूल क्या होता है, एस फॉर सेगमेंट, एस फॉर स्ट्रेट लाइन, नो वेव्स। इंटरवल, इंटरवल में क्या होता है कि मूवी के बीच में एक इंटरवल आ गया, तो मूवी के बीच में इंटरवल आता है, यानी एक वेव के बीच में अगर वो आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई, तो दैट इज इंटरवल। तो स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू वेव्स, यानी कि कोई वेव नहीं होगी, तो सेगमेंट है ये, जिससे हम पी आर सेगमेंट, जैसे पी वे वाई, ये सही, ये पी वे वाई और फिर बीच में कोई वो नहीं आई, तो ये दिस इज पी आर सेगमेंट। अब ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा ये, अब यहाँ पे आया, पहले टी वेव रही होगी, फिर पी आई, फिर ऐसे वो हुआ, तो फिर ये हमारा पूरा इंटरवल हो गया,
इसमें एक सेगमेंट है, एक वेव है, फिर एक सेगमेंट है। ये रहा हमारा QT इंटरवल, ये रही एक वेव QRS की। और फिर ये रहा हमारा पूरा का पूरा टी वेव QRS कॉम्प्लेक्स। फिर ये रहा Q, यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो T, जो इनिशियल है और जो लास्ट वाला है उसके नाम पे दिया रहता है। ये रहा PR इंटरवल होता है, ST सेगमेंट होती है, क्योंकि इसमें एंड ऑफ QRS टू टी, ST सेगमेंट, ये रही ST सेगमेंट। ST के बीच में कोई वो नहीं आया, वेव नहीं आई। PR सेगमेंट, क्योंकि PR सेगमेंट, P और R के बीच में कोई वेव नहीं आई। तो ऐसे करके QT इंटरवल वगैरह वगैरह सब। अब फिर हम ये देखेंगे कि 12 लीड EKG के बारे में हम कैसे कैसे हम देखते हैं। तो एक्चुअली अगर हम कैमराज, मतलब ये फ्लो चार्ट, ये पूरा का पूरा पाई चार्ट डायग्राम ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी कहाँ पे वो होगी प्लेसिंग। ये रहा हमारा लीड 1 0 डिग्री पे होता है, लीड 2 60 डिग्री पे होता है। दिस इज आर पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज अगेन नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ऐसे हम देखते हैं इसमें कैसे रहेगा -30 डिग्री। यूजुअली बहुत कार्डियोलॉजिस्ट का कहना होता है कि AVL अगर यहाँ पे मतलब कि सिग्नल यहाँ पे वेक्टर बन रहा है मेन, तो दिस इज वेरी नॉर्मल। पर लेकिन लीड 1 को इनिशियली करा जाता है अगर सिग्नल हमारे यहाँ पे पड़ रहा है, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की पोजीशन होगी, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है वो इसी क्वाड्रेंट में बन रहा है, इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो फिर उसको नहीं बोलेंगे कि वो हाइपरट्रोफी है। पर लेकिन बहुत अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट और मतलब बहुत कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि सिर्फ इतना मत करो, इस पार्ट तक अगर भी वेक्टर बन रहा है ना उसका लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो भी उसको हाइपरट्रोफी नहीं बोलेंगे। पर लेकिन इफ इट इज हियर और हियर, तो फिर इसमें बोला जाएगा कि हाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हाइपरट्रोफी हो जाएगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर एक न्यू टर्म हो गया इसके लिए, इस लेक्चर के लिए। पर वेक्टर्स के बारे में हम बात आगे करेंगे। एंड इट विल बी लाइक अ केक वॉक, कि अगर एक बार हम वेक्टर्स में जाए तो एक इजीली स्ट्रिप देखनी है, जरा सा कंपैरिजन करना है और सीधा हाइपरट्रॉफी छोटे के साथ हम उसमें वो भी देख लेंगे कि एग्जांपल्स वगैरह जिससे बताना होगा तुम्हें कि कैसे क्या करना है। अब एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि क्या हो रहा होगा उसमें, कि जैसे कि एक सीधे सीधे एग्जांपल है कि एक मतलब कि बहुत सारे मतलब कि अंधे लोग हैं, या मतलब कि जिसको मतलब कि उनको अप्रिशिएट करना है कि आंख अंधेरा है और फिर उनको ये करना है, हाथी को अप्रिशिएट करना है। तो कोई बोलेगा कि हाथी तो बस सूंड है, कोई बोलेगा हाथी तो बस कान और पेट है, फिर यहाँ पे कोई बोलेगा हाथी तो बस पूंछ है। पर लेकिन असली हाथी कैसे देखोगे, तो तुम हर व्यू से देख रहे होगे, ऊपर नीचे टॉप साइड्स वगैरह सारे कंपैरिजन में ला के। तो फिर हम ऐसे बताते हैं इंटीरियर व्यू हमारा V1 V2 दे रहे हैं, लेटरल व्यू V1 AVL V5 दे रहे हैं, पोस्टीरियर व्यू AVF और V7 V9 दे रहे हैं। पर लेकिन एक पूरा हार्ट का व्यू तो पूरा 12 ED के जी बता रहा है ना। तो फिर कैसे हम देखते हैं कि किन किन सिनेरियो में, मतलब कि गवर्नमेंट सेटिंग में कभी कभी 3 व्यूज से भी काम चल जाता है। अब तो वॉचेस भी बस फर्स्ट व्यू दे देते हैं, तो एक व्यू दे देते हैं, तो कौन सा व्यू दे रहे हैं, सेकंड लीड का व्यू दे देते हैं। तो फिर वो कैसे क्या रहता है, तो फिर हम प्लेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी चीज क्या होती है। अब समरी हम देखें तो आज हमने देखा कि कैसे बेसिक वैल्यू कितनी होती है, SN नोड, AV नोड, फिर डीले, फिर बंडल ब्रांच ब्लॉक्स में कौन सा RSR वाला प्राइम वगैरह ये सब आ जाती है। फिर इलेक्ट्रोड की पोजीशनिंग क्या होती है, फिर सिग्नल सेगमेंट क्या होती है, इंटरवल क्या होती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। In the subsequent lecture, we'll see what the other basically vector denote, and then we'll learn about the hypertrophies. Thank you. Do subscribe and join for the latest update. Thank you.